Hello everyone, good morning. Welcome you back in mathematics after such a long time. I know you all have given PT1 and it was a fantastic and it was really very good examination, isn't it? Considering the situation that what you are into, there is no proper schooling, no proper teaching, no proper revision. You all have taken a greater responsibility, shouldered rather a greater responsibility, and shown a kind of a maturity and prepare yourself for your PT1, and that's really a great job that what you all have done. Okay, I'm very happy. At the same time, let me tell you, I'm not more worried about PTs. I'm more worried about your board examination. Don't know what government might take decision after this for your board examination, right? But we are supposed to be ready for any sort of decision that what government takes hereafter. Okay, so let us understand one simple thing, that when can we be very much ready for your any sort of board examination. The only way is nothing but completing syllabus as early as possible. So I'm planning now, because I got a proper time in between your examinations. I got a proper time, so I have a perfect plan now. Within next 1 month or within 1.5 month or maybe 2 months, we will be completing our whole syllabus itself. As soon as we complete the syllabus, because as it is the syllabus is reduced for 30%, considering all that, we will quickly complete the syllabus and work for the revision as early as possible. And let us not waste our time in waiting for the decision of the government. Let us be ready for any sort of decision now. Okay, so here we are with the next topic, that is statistics. Already you all have, you must have started this topic in the school, and I know that this topic is very simple, very easy. But the problem of this topic is to remember the things. Okay, so I know, even if I teach you properly, even if I take a lot of time to teach you, even after that, people will say that, sir, when this formula was taken, sir, when this topic was taken, that volatile the topic is. Okay, it just moves out of your brain. That's the reason this topic need frequent revision. Okay, so whenever we have got this topic for the test, we will be having revision for sure. But right now, let us understand the topic. Before we start the topic, keep ready, or keep yourself mentally ready for the sort of calculation that what you are going to get, because a lot of calculations you are going to have in this particular topic, and all these calculations are supposed to be exactly correct, not even a one decimal point you should miss. Because of that, you might lose your mark in the board examination. So that's the reason, be ready, be mentally ready for the calculation. And I request, as you all are there at home, I request you all not to use calculators, because that will unnecessarily make you handicapped. Okay, so make sure that you all are solving it, you all are practicing it, you all are calculating it all by yourself. Okay, we have this topic as a continuation of your last year's work, that is finding mean of the ungrouped data. So let us understand how we have done it. I'm just reminding you, it was there last year. So as it was there last year, I'll be just working on it. I won't take much time in telling you the previous concept and all. Quickly we will just begin. So we have the question right now here. So I'll be writing here like xi. I hope you remember that. Then we had something like fi, and then we used to do fi xi. I hope you remember. Xi is there. I'm solving the A question here. Xi is 4, 6, 9, 10 and 15. Fi is 5, 10, 10, 7 and 8. Fi xi, it means multiplication of these two terms. So it would be 20, here it would be 60, here it would be 90, 70 and 120. Okay, and the formula for mean, so here I'll be writing mean. Normally we write this as a formula with x bar. X bar is a symbol for mean, which is equals to summation fi xi upon summation fi. So please remember this formula, and you all must have remember this from last year's syllabus itself. So purposely I have taken that. Now what do you mean by summation? Summation means addition of that particular column. So summation fi xi, it means addition of this column. So इसका जो total होगा, that will be my summation of fi xi. And what is summation fi? Is nothing but total of this particular column. So let's calculate, let's add it quickly. So 10, 20, 25, 25 plus 10 is 35 plus 5. So it will be 40.
and I don't know what is the addition 0 0 0 0. It is a good thing that it is giving us 0 answer. 7 9 9 18 18 to 20 26 1 2 carry 36. So this is 360 and 40. So we have summation fi xi is 360 divided by summation fi is 40, and 0 0 get cancelled, answer is 9. Clear? So mean is 9, and of course the answer is right here, which is given in the booklet itself. Okay, so purposely in this particular topic I have given you answers as well. Reason behind giving answers is not to copy or not to bring the answers, but I want you to be perfect in your answers. If even with one single decimal your answer is wrong, that means surely in the examination you're going to lose your marks. Okay, so keep that in mind, that you have to be very very particular about your answers in this topic. Okay, so what I want to do is nothing but try solving नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. ओके, तो आप खुद से वो कर सकते हो. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. पर्पसली मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें कैलकुलेशन ईजी हो, लेकिन इन नेक्स्ट क्वेश्चन द कैलकुलेशन इज नॉट दैट ईजी. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट्स द रीजन आई विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन एज वेल. Otherwise you will say that sir only solves easy questions. So here we have the next one as well, fi xi. Let us see whether we get the correct answer. No, so we have xi is 67, 70, 72, 73 and 75, something like that, and we have 4 3 2 2 1. These numbers are quite easy. Still I'll multiply it. 8 to carry 24 plus 2 6 8, 2 1 0 and 2 2 the 4 and 14 144, right, and then 6 146 and 75. So we have the same thing, and easy formula, x bar is equals to summation fi xi upon summation fi. So what is summation fi xi? Nothing but addition of all these columns. So understand it. We are building the concept slowly. Let me tell you, I'm not actually teaching you all sort of things together. That will unnecessarily confuse your brain. So हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सारे फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो डोंट वरी, विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रॉपर्ली, वेरी प्रॉपर्ली. तो 8 plus 4 12, 12 plus 11, 12 plus 11 is 23, 23 3 2 carry. तो 7 to 9 13 14 15 16 17 18, 18 plus 6 18, 19 20 21 22 23 24. 18 plus 6 is 24, 4 2 carry, right. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4 4 5 6 7 8, 843. So we have 843 as a summation fi xi divided by summation fi is very simple. This would be equal to total 4 3 7 7 12. I think this must be 12. चलो देखते हैं, 12 है ना, करेक्ट है ना, देख लो यस 12. तो नाउ अभी करना क्या है यहाँ पे, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉर्मली यहाँ पे लोग क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इसको मे बी सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्राई करते हैं कन्वर्ट करना एंड ऑल. बट लेट मी टेल यू, स्टैट्स में एंड मैथ्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ओके, सो डू नॉट फॉलो द थिंग्स व्हाट यू डू इट इन द मैथमेटिक्स इन द स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स के एक सिंपल वेज होते हैं. मैं बोल रहा हूँ इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो. ओके, इसको डायरेक्टली अगर मैं डिवाइड करूँगा जैसे कि ऐसे 843 डिवाइडेड बाय 12, ऊपर लिख सकता हूँ ना मैं, अच्छा इधर लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम. तो 7 84. आई नो द टेबल ऑफ 12. इफ आई डोंट नो द टेबल ऑफ 12, I can guess it and multiply it. Like suppose imagine 84 है, तो 12 how many is 84 we get. तो accordingly you have to do it, and ये करना ही पड़ता है. Division with any sort of number you have to learn. So meanwhile whenever we get the difficult calculation, I'll be teaching you, I'll be working on it, don't worry. तो 84 ये 0 आ गया, 3 from the up, 3 तो टेबल में नहीं है तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया, तो ऊपर से पॉइंट एंड यहाँ पर भी पॉइंट, तो 0 30 12 2 24 24, तो 6 लेफ्ट 60 5 60 हो गया. तो माय आंसर इज 70.25, जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है. ठीक है, ये एग्जैक्ट आना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए. कहीं भी चलेगा, या फिर ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है,
All these kind of excuses will unnecessarily eat your marks in the examination, I'm telling you. And stat topic ऐसे आलतू फालतू नहीं है, ऑलमोस्ट 7 मार्क्स का टॉपिक है. जितना ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है उतना ही स्टैटिस्टिक्स का वेटेज है. लेट मी टेल यू, रादर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 2 टॉपिक है और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 1 टॉपिक है. तो 2 टॉपिक पे बेस वेटेज है और यहाँ पे सिर्फ 1 टॉपिक पे बेस वेटेज है. तो यहाँ पे आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. डिड यू गेट इट क्लियर? तो सी दैट at any cost you calculate, okay, and whatever doubt you get, whatever doubt in any sort of calculation, like multiplication में calculation है, multiplication में difficulty है, division में difficulty है, any sort of thing you can discuss. I will put the video based on it, okay? So please avoid hiding the things from each other. Put that as a comment. You can put me as a personal comment that I don't know the division, so please teach me. I'll send the video for the teaching you division as well, okay? Separate video I'll send you, don't worry. लेकिन बिल्कुल भी इशू हो तो उसको छुपाना मत. sort it out as early as possible. So let's go for the next one. इसको डिस्कार्ड कर देते हैं. So let's go for the next one. Next one we have got something like finding the unknown value when the mean is given. ये भी हमने लास्ट ईयर आपको याद होगा तो किया था. Those who all were not with me must not have done it. So let us see for everyone कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो मीन इज गिवन, इफ़ यू आर एबल टू रीड इट, आई थिंक अभी रीड नहीं कर पाओगे उसको. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड. मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 7.5. तो एक्स बार इज गिवन विच इज 7.5, राइट, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट अ पी वैल्यू विच इज़ हियर, ठीक है, एज अ फ्रीक्वेंसी अननोन वैल्यू है. तो चलो देखते हैं. तो वी हैव समथिंग लाइक एक्स आई, देन एफ आई, एंड प्रोसेस विल रिमेन सेम, ठीक है. तो एक्स आई इज 3, 5, 7, 9, 11 and 13. Fi is 6, 8, 15, P 8, 4. Fixi 6 3s are 18, 5 8s are 40, 17 into 5 105, 9P. देखो 9 into P is 9P है ना, 88 and 52. ठीक है. तो अभी हमारा जो फॉर्मूला सेटअप करना है वो तो ऐसे करना पड़ेगा ना हमें. समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये तो सेम ही रहेगा. इज दिस क्लियर? तो हमें करना क्या है यहाँ पे, एफ आई को ऐड करना है एंड समेशन एफ आई एक्स आई को भी ऐड करना है. लेकिन पी एंड 9P छोड़ के हम लोग ऐड करेंगे एंड प्लस लिख लेंगे, दैट्स इट. तो वी हैव योर 8 प्लस 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 15 इज 29, 29 प्लस 12, 8 प्लस 4 12, 29 प्लस 12 कितना होता है, 29 प्लस 12 29 प्लस 12, 9 प्लस 2 इज़ 11, 41, ठीक है. तो ये हो गया 41 प्लस पी, ओके. बिल्कुल भी डोंट हेजिटेट टू टेक इट डाउन एंड ऐड इट, ओके. ओरली करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोंट शो एनी काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. मैथ्स के सामने कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, ओके. कहीं भी किसी की भी मिस्टेक हो सकती है. तो बी वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट. तो डायरेक्टली लो, रफ पेपर पे सॉल्व करो, ठीक से ऐड करो. इट माइट टेक टाइम इन द बिगिनिंग बट यू विल फील दैट इट इज़ एग्जैक्ट, इट इज़ करेक्ट, ओके. तो चलो एफ आई एक्स आई करते हैं ऐड. अरे ये मूव हो रहा है, ठीक है. तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 13 एंड 8 कितना होता है, 13 एंड 8 21, राइट. 21 22 23 23 2 अप. तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 कितना आता है, 25, राइट. 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 4 29 30, 303 प्लस 9P. ये 9P का फंडा या समझ में आ गया ना, क्योंकि अनलाइक है. क्लियर. अभी हम लोग पुट करेंगे वैल्यू. तो यहाँ पे मीन दिया हुआ है 7.5, ओके. एफ आई एक्स आई क्या दिया है, 303 प्लस 9P अपॉन एफ आई क्या दिया है, 41 प्लस P. ये हो गया, ये बात समझ में आ गया. अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड P को आइसोलेट करेंगे. ये 75 नहीं है, 7.5 है, प्लीज़ रिमेंबर दैट. तो मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 41 प्लस P गिव्स यू 303 प्लस 9P, है ना. बात समझ में आ गई. तो चलो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट. तो 7.5 इंटू 41 कितना होता है, चलो सेपरेटली कर लेंगे ना. 75 इंटू 41, तो ये 750 4 5 22 कैरी 4 30
ठीक है, तो 307.5 होगा, पॉइंट भी देना है, तो 307.5 प्लस 7.5 p इज इक्वल टू 303 राइट प्लस 9p। तो ये जो डेसिमल वाले कैलकुलेशन ये तो आएंगे ही इन स्टैटिस्टिक्स, रिमेंबर दैट। तो ये हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये होगा, ये देखो 307 माइनस 303.0, तो 4.5 होगा, तो 4.5 एंड 7.5 इधर क्या, 9 माइनस 7.5, 9.0 माइनस 7.5। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, सेपरेटली लो, रफ में करो, नहीं तो गलतियाँ होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे आएगा 5, 1 कैरी 1.5 होगा, नॉर्मली यहाँ पे 2.5 लिख लेते हैं बच्चे, तो 1.5 p हो जाएगा, बराबर है 1.5 p हो गया। तो हम लोग इसको 1.5 को इधर कर देंगे, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.5 अपॉन 1.5 इंटू 10 विच कैन बी इक्वल टू 45 अपॉन 15। तो आंसर 3 है, वो तो क्लियर ही है, यहाँ पे दिख भी रहा है। ओके तो अगर मैं ऑल दिस रफ वर्क इफ आई रेस, पर्पजली मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास नोटबुक है लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू डू द रफ वर्क प्रॉपरली। अगर मैं रफ वर्क नहीं करूँगा तो आपको लगेगा कि मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ एंड आप भी वो करना शुरू कर देंगे। तो आई डोंट वांट यू टू यूज़ द कैलकुलेटर, आई वांट यू टू प्रॉपरली सॉल्व इट, क्योंकि आज नहीं करोगे कैलकुलेशन कल तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा, एंड डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन यू विल नेवर गेट द आंसर्स। ओके उसके लिए पहले प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो डिस्कार्ड करते हैं इसको, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, लेकिन वैसे भी मैं आपको सॉल्व करके देने वाला नहीं था ये क्वेश्चन, ये आपके इसमें ठीक से आएगा, डोंट वरी, आपको खुद से ये सॉल्व करना है। ओके मैं पर्पसली इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहा हूँ, इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके मुझे आपने क्या करना है, कमेंट करना है। आई नो दैट कि ये 2 वेरिएबल का है, यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने किया इसमें एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, लेकिन लेट मी टेल यू 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस आएंगे, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं, जैसे 2 इक्वेशंस F1 F2 में आ जाएंगे एंड आपको वो सॉल्व करना आ जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू रैदर सॉल्व इट ऑल बाई योर सेल्फ। नहीं आया तो ऑफकोर्स आई विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट सेशन, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू comment the correct answer of these 2. Of course answer is given, you might directly send that answer, but it's okay, it's up to you that how you want your image to be. But anyway see that matlab I'm expecting honesty from you, that whether you, if you get the answer please put the same as it is. Okay if you don't get the answer you can even put that I did not get it, okay I did not understand it, I was not able to solve it, so that in I will check, I will see that next video में ऐड करना है कि नहीं करना है इसको। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये है आपका इस साल का टॉपिक, मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। दैट मीन्स नाउ व्हाट वी हैव इज नथिंग बट ग्रुप डेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज डेटा व्हाट इज गिवन हियर। देखो चेक कर दो, यहाँ पे xi जो था वो एक नंबर था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था कि ग्रुप डेटा भी है, और ये कैसा है, ग्रुप नहीं है सिर्फ, ये ग्रुप कंटिन्यूस डेटा है, मतलब 0 to 10, उसके बाद 10 से शुरू होता है, तो 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो लास्ट ईयर जैसा ही कॉन्सेप्ट है, हम लोग धीरे धीरे एज आई टोल्ड यू धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाले हैं। डायरेक्टली सारे कॉन्सेप्ट एट ए टाइम नहीं देखते हम लोग, द रीजन इज थिंग्स यू कैनॉट रिमेंबर एट ए टाइम, तो अंडरस्टैंड इट। चलो देखते हैं फटाफट से, इसको देखते हैं, ये है क्या। ओके ये रहा आपका ग्रुप डेटा, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। तो जो मार्क्स दिए हुए उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ठीक है, ये मैं मार्क्स ही लिखता हूँ, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं क्लासेस। ओके क्लास इंटरवल या फिर क्लास बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वी हैव FI जो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लास क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो इसमें हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट ईयर भी देखा था। अपर लिमिट का मतलब होता है क्लास इंटरवल का हाईएस्ट वैल्यू। आई जस्ट चेंज द कलर एंड आई जस्ट शो यू, दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ओके तो अपर लिमिट का मतलब होता है द लार्जर वैल्यू ऑफ द क्लास एंड लोअर लिमिट का मतलब होता है द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द क्लास। ओके ये होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से, हम लोग FI लिखते हैं। FI इज 7, 10, 15, 8 एंड 10। अभी हम लोग इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पे xi था ऑलरेडी, वी हैड दैट xi देयर राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली वैल्यू थी। अभी यहाँ पे क्या है, xi है ही नहीं,
xi नहीं है. Instead of that we have numbers from 0 to 10, मतलब 0 से लेकर 10 तक है. आप सबसे मल्टीप्लाई करते बैठोगे टू द fi, नहीं है तो इम्पॉसिबल है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, xi आइडेंटिफाई करना पड़ता है. ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई द xi. ओके, एंड देन ओनली वी गो फॉर fi xi. एम आई करेक्ट? बाकी फॉर्मूला सेम है, एवरीथिंग सेम है लाइक लास्ट ईयर. बस हमें xi के बारे में सोचना है. व्हाट इज xi? xi इज कॉल्ड एज अ क्लास मार्क. क्लास मार्क. ओके, क्या होता है क्लास मार्क? लेट अस सी. इट इज नथिंग बट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द फर्स्ट केस दैट इज फर्स्ट क्लास, उसमें कैसा है 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आएगा? 5 आएगा. तो मेरा xi जो है वो है 5. लेकिन अभी हमें तो सारे क्लास का फाइंड करना पड़ेगा. एम आई करेक्ट? है ना, सारे क्लास का मतलब सेकेंड क्लास का भी करना पड़ेगा. तो हर एक बार कैलकुलेशन करते बैठोगे? यस यस, यू हैव टू. ओरली भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. क्योंकि क्लासेस हमेशा कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, मल्टीपल्स में होते हैं, 10 के मल्टीपल में होते हैं या फिर 5 के मल्टीपल में होते हैं, तो थोड़े बहुत ईजी हो जाता है. ओके, क्लासेस थोड़े से ईजी होता है. तो बेसिकली क्लास मार्क हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मतलब इन जो क्लास इंटरवल है इसका मिडिल नंबर, द बिटवीन नंबर हम लोग फाइंड कर रहे हैं. तो 0 एंड 10 के बीच वाला नंबर क्या है? 5 है. तो वही है वो क्लास मार्क. तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्लास मार्क, विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. ओके, देन वी हैव 10 to 20, 10 to 20, 10 plus 20, 30, 30 अपॉन 15. तो ये ओरली मैं कर सकता हूँ. आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो. डोंट हेजिटेट टू कैलकुलेट, लेट मी टेल यू. क्योंकि एरर की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. स्टैट में बिल्कुल भी एरर नहीं होना चाहिए. थोड़ा टाइम लगे इन द बिगनिंग बट एरर नहीं होने चाहिए. ओके, 20 to 30 इज 25, 30 to 40 इज 35 एंड 40 to 50 इज 45. आपको पता चल गया होगा कि हर एक इसमें 5 है एंड 10 का गैप है. तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, बट इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, आई नो दैट. अभी fi xi जो अपना वाला कॉन्सेप्ट है अभी हो गया. ऑलमोस्ट वी आर डन विद द क्वेश्चन नाउ. ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट रिमेन सेम लाइक अ प्रीवियस कॉन्सेप्ट. ओके, तो वो क्या होता है? 7 5 35, 10 50 150, 25 इंटू 15. अभी देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है. तो चलो हम लोग क्या करते हैं, 25 इंटू 15 कर देते हैं. पर 15 का टेबल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो डायरेक्टली कर दो. 5 से करो फिर 1 से करो, नो प्रॉब्लम. 375. ठीक है, तो ये आएगा 375. आपको इतनी जल्दी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, धीरे से करो, आराम से करो. ये देखो ये भी डिफिकल्ट है. 8 5 40, 4 अप, 8 3 24, 24 27 270. होपिंग इट्स करेक्ट, डोंट नो, आई डोंट थिंक सो. नहीं, करेक्ट नहीं है. 8 5 44 अप एंड 28. ओके, 280. देखो ऐसे होता है, हो सकता है. मुझे कैसे पता चला? नहीं, ये भी कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है. एक मिनट. हाँ, ये करेक्ट है. कैसे पता चला? मतलब 27 तो डिविजिबल नहीं है ना 8 से, तो इस हिसाब से पता चल गया. ये हो गया 450. ओके, एनीवे 5 + 5 10 टोटल करें ना हम लोग, तो टोटल करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर यूज़ करके. द 5 5 5 10 1 कैरी. 8 + 5 13 + 1 14, 14 + 10 24 + 5 29, 2 कैरी. 2 + 4 6 7 8 9 10 11 एंड 1 12. ठीक है, एंड समेशन fi करते हैं ना हम लोग, बराबर ना, ये भी करते हैं. तो 7 7 7 5 12 12 8 22 कैरी. 2 1 3 4 5 50. ठीक है ना, हो गया. बस अभी करना क्या है, कुछ नहीं. अपना वाला मीन पकड़ो. x bar is equals to summation fi xi upon summation fi. If you want to write mean, you can write mean, which would be 1290 upon 50. ठीक है, आंसर 0 0. बिल्कुल भी यहाँ पे रफ वर्क दिखाना नहीं, बिल्कुल भी. ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लास मार्क भी. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, पर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. बस यही, ये टेबल और ये कैलकुलेशन, बस दैट्स इट एंड योर वर्क इज़ डन. बाकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो सभी क्या कैसे करते हैं, रफ में करते हैं. तो 0 0 गेट कैंसिल एंड 1 to 9 डिवाइड बाई 5. 5 2 10,
टू लेफ्ट 29, 5 5 is 25, 4 left 8 is okay 24 20 सॉरी 25.8, ठीक है। तो 25.8 इज़ माई आंसर। रफ वर्क में इरेज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी याद रखो, ये जो मीन है, मीन इज़ नॉट अ नंबर, मीन इज़ अ वैल्यू। याद रखो, नंबर नहीं है, एक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड यूनिट फॉर द मीन। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द यूनिट फॉर द मीन, देन इट वुड बी जस्ट अ नंबर, and I'm telling you, mean is not a number. So if you are not writing the unit of the mean, you are losing your marks. Okay, so very minute things are there where you might unnecessarily lose your marks. तो यहाँ पे हमें करना क्या है? यूनिट लिखना है। अभी what will be the unit of this mean? यहाँ पे यूनिट होगा, यूनिट होगा, I'll tell you, marks. यूनिट होगा marks. ठीक है। सो दैट्स इट, आई थिंक इट्स डन। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, दैट्स वेरी क्लियर। ओके, हाँ, ये मार्क्स यूनिट कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आ गया जो गिवन है, ठीक है ना। पता नहीं है, मुझे लगता है वीडियो एंड हो गया, बट आई डोंट नो। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को कनेक्ट कर देता हूँ, लिंक कर देता हूँ और एक क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो वेट ए मोमेंट, मैं चेक करता हूँ, इसको पहले डिस्कार्ड करता हूँ। यस, वीडियो इज बिन एंड। काय झाले? नाही, शिट्ट्याचं नाही, काय व्हिडिओ थांबलाच तो, कुठे पण थांबला माहीत नाही आता, काय माहिती, काय तर लाय काय लागलं, टॅबमध्ये नाही, ते ॲपमध्ये दोष आहे.